Yes, good morning. Today we are going to start how to find the radius of convergence and domain of convergence plus region of convergence. So let's start with the questions. The first two questions are of objective type that can be asked in the UGC exam net. So let's start with this. Find the radius of convergence of the series summation Zn over n the power p. We have to find the radius of convergence for this series. We know that let consider your an is equal to 1 over np, as your power series looks like an z the power n. So your an will be 1 over np and the power p. So this is your an, and an plus 1 is equal to 1 over n plus 1 the power p. So your r is equal to limit n tends to infinity mod of an over an plus 1, which is equal to limit n tends to infinity. This an is 1 over np, and this is an plus 1 is 1 over n plus 1p. So this is equal to, if you take n raised to the power p outside, you will get limit n tends to infinity 1 plus 1 over n the power p. So this limit comes out to be, this term is 0. So this is 1. So the radius of convergence is 1. Next. If R1 and R2 are the radius of convergence of the power series summation an zn and summation bn zn, then show that summation an bn zn is R1 R2. That means the product of the radius of convergence of the two series, that product is for this given series, that is an bn z the power n. So let's check. Let R1 be the radius of convergence. Now it is given that R1 is the radius of convergence for an zn. So I directly write, R1 is equal to limit n tends to infinity. This is 1 over the another formula for the radius of convergence, that is an the power 1 by n. And for R2 we should write limit n tends to infinity 1 over mod bn the power 1 over n. So now let R be the radius of convergence of both this product series. So let R be the radius of convergence of the series summation n going from 1 to infinity an bn z the power n. So this time R is equal to, then this is equal to limit n tends to infinity 1 over mod an bn the power 1 by n, which is equal to limit n tends to infinity mod of an the power 1 by n mod of bn the power 1 by n, which is equal to taking limit to both the terms, that is mod an 1 by n, and the limit for the other one, limit n tends to infinity 1 over mod of bn power 1 by n. This is nothing but your R1 and this is R2. So this R is equal to product of the radius of convergence of both the given series. So this is a very nice question. Next. Find the radius of convergence of the power series fz equal to summation zn over 2n plus 1
This is an exercise for you. You use r is equal to limit n tends to infinity mod an over an plus 1 equal to, which comes out to be 2. If you solve this, the radius of convergence will be 2. The next one, see this question. Show that the power series 1 plus ab over 1 dot cz dot means multiplication plus a into a plus 1 b into b plus 1 over 1 to c into c plus 1 z square up to so on has the unit radius of convergence. Unit means r should be equal to 1. So if we check this summation a and zn, if we write this series in terms of the power series, this will be a plus 1, then a plus 2, so on up to a plus n minus 1. Why? See, यहाँ पर z की पावर है 2, ठीक है, तो a plus 1 ये 1 पे एंड अप हो रहा है. दैट मीन्स अगर 2 है तो 2 minus 1, अगर 3 है तो 3 minus 1. तो अगर टर्म्स हमारी जो z की पावर n तक हम जा रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट वाला जो ब्रैकेट में क्या आएगा, a plus n minus 1. देखो z दी पावर 2 के लिए एक कम है, तो z दी पावर n के लिए हम लास्ट वाला जो इसका टर्म होगा वो a plus n minus 1 करेंगे. ठीक है, n है तो n minus 1 तक लेके जाएंगे. सिमिलरली b plus 1 अप टू b plus n minus 1 अपॉन ये तो 1 2 3 अप टू n हो जाएगा, और c plus 1 अप टू c plus n minus 1. यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास 2 है तो हमारे जो नंबर्स हैं वो 2 पर एंड अप हो रहे हैं, तो अगर हमारे पास पावर n है तो हमारे नंबर्स n तक एंड अप होंगे. बट जो अंदर वाले जो टर्म्स है c plus 1, अगर 2 है तो 1 तक है, तो अगर n है तो n minus 1. So 2 है तो 2 minus 1 that is 1. तो अगर n है तो n minus 1, एक टर्म पीछे. ठीक है, नेक्स्ट. तो हम यहाँ से, ये हमारी पावर सीरीज़ है, हमने an ये पूरा सपोज किया है अपना, ये सारा का सारा हमारा क्या है, an है. तो हम if an is equal to this, then your an plus 1 will be, you can write an plus 1 is equal to a plus 1 so on a plus n minus 1 तक तो चलेंगे. साथ में अगली टर्म क्या होगी, हमें n की जगह n plus 1 डालना है, तो दैट विल बी a plus n. फिर b plus 1 so on अप टू b plus n over, दिस इज़ 1 2 3 अप टू n, साथ में n plus 1, फिर c plus 1 so on c plus n minus 1 से c plus n तक. अगर हम अपना r इक्वल टू लिमिट मॉड ए एन ओवर ए एन प्लस 1 चेक करेंगे, तो आप यहाँ पर देखो जो न्यूमरेटर में a प्लस n माइनस 1 तक वाली सारी टर्म्स हमारी ए एन प्लस 1 वाली टर्म्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे और हम सिर्फ a प्लस n तक रह जाएंगे. सिमिलरली b प्लस 1 ये सब कैंसिल हो जाएगा, हम b प्लस n तक रह जाएंगे. नीचे ये सारा 1 से लेकर n तक कैंसिल होगा, n प्लस 1 रह जाएगा, और ये सारा c वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, हम c प्लस n तक रह जाएंगे. ओ, मैंने अगेन ए एन प्लस 1 लिख दिया है. सो वी टेक नाउ द रेडियस ऑफ, दैट इज r is equal to limit n tends to infinity mod of an over an plus 1. So this is limit n tends to infinity. अब an जो है ऊपर सारा, वो नीचे an plus 1 वो सब कैंसिल होके क्या रह जाएगा हमारे पास. So we are left with n plus 1 c plus n a plus n और b plus n. देखो an plus 1 नीचे है तो इसका न्यूमरेटर हमारा नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा. ठीक है, बाकी सब कैंसिल हो चुका है. तो अब यहाँ पर हम n बाहर ले लेंगे तो हमारे पास लिमिट आ जाएगी. वी टेक n आउटसाइड, सो दिस विल बी 1 plus 1 by n c over n plus 1 over a over n plus 1 and b over n plus 1. So if you take n tends to infinity, all these 1 by n is 0, c by n is 0, 0, 0. So you will left with 1
1 over 1 and 1, which is 1. So you get your radius of convergence as a unit. That is, your radius of convergence is unit. That is, this is 1. So in case of this, you are having unit radius of convergence. So next, find the radius of convergence of this series. फिर से हम इसको अगर हम power series में देखेंगे, so we are having the series in the form of power series as n going from 0 to infinity and a n z n, which is equal to summation n going from 0 to infinity. If you see this, this is 1 3 then 1 3 5, तो हम इसकी nth टर्म यहाँ पर लिखेंगे, वो हो जाएगी आपकी 1 3 5, फिर सो ऑन जाकर दिस विल बी 2n minus 1. अब यहाँ पर हमने 2n minus 1 तक क्यों गए हैं? दिस इज z द पावर n. फिर से आप मैच करो, यहाँ पर आपका 3 है n, ठीक है. तो अब हमने यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अपना n 3 पुट करते हैं तो 2 3 द 6 minus 1 वो 5 बन जाता है, ठीक है. अगर हम n यहाँ पर 2 पुट करते हैं, अगर हम z स्क्वायर देखें 2 पुट करें, दिस इज़ 2 2 ज़ 4 minus 1 3, तो आपका 3 बन जाता है. तो अगर हमारा n तक जाएगा तो लास्ट टर्म हमारी 2n minus 1 होनी चाहिए, ठीक है. ऐसे ही नीचे ही 2 5 8 सो ऑन जाकर ये हो जाएगा आपका 3n minus 1. फिर से देखो, यहाँ पर अगर n2 है, हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं, 3 to the 6 minus 1 5 आ रहा है. अगर हम n यहाँ पर 3 पुट करते हैं डिनोमिनेटर में, तो 3 3 ज़ा 9 minus 1 ये 8 आ रहा है. न्यूमरेटर के लिए अलग है, डिनोमिनेटर के लिए अलग चेक करना है, ठीक है. तो आपकी nth टर्म ऐसे बन जाएगी. सो नाउ दिस इज़ योर an. So an is equal to 3 5 1 3 5 so on. This is 2n minus 1 over this is 2 5 8 so on 3n minus 1. So your a of n plus 1 should be equal to 1 3 5 सो ऑन. यहाँ पर 2n minus 1 तो आएगा, बट अब हमने इसमें n plus 1 डालना है. तो n plus 1 जब हम इसमें पुट करेंगे तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 2n plus 1 ओवर 2 5 8 सो ऑन 3n minus 1, और यहाँ पर जब हम n डालते हैं n plus 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा 3n plus 2. So now your r is equal to limit n tends to infinity mod of an over an plus 1. This is equal to limit n tends to infinity. Now see, all these terms will cancelled out. We will be left with 3n plus 2 over 2n plus 1. So this is equal to, if you put the limit n tends to, पहले n को बाहर ले लेते हैं, so this will be 3 plus 2 by n and this is 2 plus 1 by n. Limit n tends to infinity, which is equal to 3 by 2. Okay. नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, लेट समीशन a and z n be a power series and r be the radius of convergence. जब भी आपका r इन्फाइनाइट आता है, दैट मीन्स आपकी सीरीज़ हर जगह कन्वर्ज कर रही है. बिकॉज r का मतलब क्या होता है? r हमारा रेडियस है जहाँ तक सीरीज़ कन्वर्ज कर जाए. r इन्फिनिटी का मतलब आपका रेडियस इन्फिनिटी तक, दैट मीन्स सारी जगह सीरीज़ आपकी कन्वर्ज करेगी. और अगर r 0 हो गया, इसका मतलब कन्वर्जेंस आगे जा ही नहीं रही है, तो सीरीज़ आपकी खाली यहाँ पर ही कन्वर्ज करेगी z इक्वल टू 0 पर. क्योंकि r आपका यहाँ देखो, यहाँ तक अगर आपका r होता है, क्योंकि अब r हम 0 ले रहे हैं, दैट मीन्स r आपका यहाँ पर नहीं है, r आपका यहीं पर है, तो इसकी कन्वर्जेंस आगे जा ही नहीं सकती. तो एक ही पॉइंट z इक्वल टू 0 पर ही सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है. और अगर r आपका
इन्फिनिटी तक जाता है, तो आपकी सीरीज़ सभी जगह कन्वर्ज कर रही है, एवरीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट डोमेन एंड रीजन। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे इसमें हमने बताना कि कैसे हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, कैसे हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। जब हम डोमेन की बात करते हैं, डोमेन एक आपका ओपन कनेक्टेड सेट है, और डोमेन जब भी हम निकालेंगे तो उसमें बाउंड्री वाले पॉइंट्स काउंट अप नहीं होते। डोमेन में सिर्फ हमारे अंदर कन्वर्जेंस वाले पॉइंट्स जो है आपके काउंट अप होंगे। दैट इज़ अगर आपका पॉइंट है z-3, तो मॉड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर ये सारा आपका डोमेन होगा। बट यहाँ पर आप डोमेन जो है मॉड z-3 इक्वल टू r पर चेक नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज इक्वल टू का मतलब आपकी बाउंड्री भी काउंट हो रही है, बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी आ रहे हैं, तो हमने बाउंड्री यहाँ पर स्किप करनी है। इट डज़ नॉट कंटेन बाउंड्री पॉइंट्स, तो सिर्फ अंदर वाला पार्ट ये डोमेन होगा। और अगर हम रीजन की बात करते हैं तो उसमें डोमेन वाले पॉइंट्स भी आते हैं, प्लस कुछ सम या कोई भी नहीं, या सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। सो रीजन की जब हम बात करेंगे तो हमें डोमेन प्लस सम, नन और ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, अंदर वाले पॉइंट्स भी, बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी, कुछ बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी, तो इसमें से कुछ भी केस हो सकता है। तो इट मे कंटेन बाउंड्री पॉइंट्स, सारे के सारे या फिर कुछ एक आधा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या रीजन है, उस पर हम देखेंगे, चेक करेंगे। तो मेन हमें अपनी कन्वर्जेंस ही चेक करनी है हर एग्जाम्पल में। फर्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमें पहले आर चेक करना है कि हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ तक जा रहा है, क्या है, उसके बेस में हम रीजन बताएंगे। सो लेट्स सी। If you consider your an, that is n factorial, and an plus 1 is coming out to be n plus 1 factorial. If you check your radius, that is limit n tends to infinity, an over an plus 1 mod, this is equal to limit n tends to infinity, this is n factorial, this is n plus 1 factorial, limit n tends to infinity, this is n factorial, this is n plus 1 into n factorial. So this is cancelled. We will left with limit n tends to infinity over 1 over n plus 1, which is equal to, sorry, if this is infinity, this is equal to 0. 1 over infinity is 0. अब देखो यहाँ पर r आपका 0 है, दैट मीन्स हमारा सिर्फ z इक्वल टू 0 पर ही कन्वर्ज कर रही है ये सीरीज़, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। So the given series does not converge for any z except for z equal to 0. So you write the series converges for z equal to, sorry, at z equal to 0 only. तो आपका रीजन क्या बना? खाली एक पॉइंट, ना बाउंड्री ना आगे कहीं भी नहीं, खाली एक पॉइंट ही आपका रीजन हुआ। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? खाली वन पॉइंट, दैट इज z इक्वल टू 0 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। इसमें योर an इज इक्वल टू n स्क्वायर। सी यहाँ पर आपके पास z स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो हमें अगर आप अपनी पावर सीरीज देखते हैं, समीशन an zn इस टाइप की होती है हमारी पावर सीरीज, ठीक है। तो हम इसको पहले इस टर्म में चेंज करते हैं, और यहाँ पर आपका zn नहीं है, z स्क्वायर प्लस 1 दी पावर n है।
गिवन सीरीज़ में से अगर हम अपना ए एन ढूंढेंगे तो हमें इस टाइप से देखना है। तो अगर हम इससे मैच करें तो हमारा ए एन क्या बनेगा, देखो आप अकेला z नहीं छोड़ सकते, आपके साथ z के स्क्वायर प्लस 1 गिवन है पावर n, तो खाली z दी पावर n नहीं है, तो ये पूरी की पूरी टर्म के साथ पावर लिखनी है। तो ए एन हमारा इस चीज़ को छोड़कर बाकी देखो क्या होगा, n स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा की पावर n, दिस इज योर ए एन। And an plus 1 will be n plus 1 whole square over 1 plus iota power n plus 1. So we check r, that is equal to limit n tends to infinity an over an plus 1 mod, which is equal to limit n tends to infinity. Now what is an? This is n square, this is n plus 1 whole square, this is mod of 1 plus iota n plus 1 over mod of 1 plus iota n. तो n वाला तो कैंसिल हो गया, तो we will left with limit n tends to infinity n square over n plus 1 whole square, this is 1 plus iota mod. So this is if you take your n square outside you will get, ये cancel हो जाएगा 1 over 1 plus 1 by n, और इसका mod of 1 plus iota क्या हो जाएगा आपका 2 root of 2 a square plus b square under the root, that is root of 2. Limit n tends to infinity, this is 1 over 1 plus 1 by n whole square, वो n square cancel हो गया. So if you put limit infinity you will get the answer root 2. So the radius, so the यहाँ पर आपको domain of convergence पूछा है, देखो यहाँ पर find the domain of convergence. तो domain of convergence क्या आ गया, therefore the domain of convergence is, हमने किसका डोमेन लेना था, ये वाला mod of z स्क्वायर प्लस 1, यही है। ये देखो हमारी पावर सीरीज़ में ये वाला, इसका जैसे हम mod z लेस देन r लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा mod of z स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ लेस देन r, r क्या है आपका √2, तो ये आपकी डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। सो लेट summation n going from 0 to infinity u and z is equal to summation n going from 0 to infinity, this is 2 iota over z plus iota plus 1 the power n। हम इसको पावर सीरीज़ के टर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे के ऐसे ही पूरा ए एन ले लेंगे, पर यहाँ पर ए एन की जगह यू एन टर्म ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज पावर सीरीज़ आपकी इस टर्म में ऐसी दी हुई है, ए एन जेड एन के टर्म में नहीं दी हुई है, इस तरह की पावर सीरीज़ है, तो हम इसमें पूरा का पूरा ये यू एन जेड कंसिडर कर लेते हैं। यू एन जेड ए एन जेड कुछ भी लिख लो आप, तो आई एम राइटिंग यू एन जेड इज इक्वल टू, तुम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे ना, 2 आयोटा ओवर z प्लस आयोटा प्लस 1, ठीक है, एंड यू एन प्लस 1, z इज इक्वल टू 2 आयोटा ओवर z प्लस आयोटा प्लस 1 द पावर n प्लस 1, ठीक है। हम इसकी कन्वर्जेंस जो हमारे पास डीएलएम्बस टेस्ट हमने पढ़ा था उसको लेकर चेक करते हैं इसकी कन्वर्जेंस, बिकॉज डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें बस ये देखना है कि जो हमारी गिवन सीरीज़ है वो कहाँ पर कन्वर्ज कर रही है। अगर तो हमारी गिवन सीरीज़ हम ए एन जेड एन की फॉर्म में देखकर ए एन फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेक करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था।
इस वाले क्वेश्चन में हम इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना an जज नहीं कर पा रहे हैं, an zn की टर्म्स में हम an नहीं जज कर पा रहे हैं, तो इसको पूरा का पूरा मैंने un ले लिया है, वहाँ पर un+1 मैंने देखा है, तो मैं यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं फाइंड आउट कर रही, मैं इसको डीएलएम्बस टेस्ट से देखती हूँ कि कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है ये, ठीक है। सो देयरफॉर अगर हम लिमिट n टेंड्स टू, डीएलएम्बस टेस्ट में भी ऐसे ही आती है लिमिट un(z) ओवर, इसलिए मैंने यहाँ पर un+1 ऐसे लिया हुआ, मैंने a यूज़ नहीं किया, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हमने बार बार an+1 यूज़ किया था। दिस इज़ समवट डिफरेंट, सो दिस इज़ mod ऑफ दिस which is equal to, what is mod of u and z? 2 iota over z plus iota plus 1, and this is 2 iota over z plus iota plus 1. Now see, ये तो सारे सेम है टर्म्स, तो n वाला तो कट जाएगा, तो हम किस पे रह जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा mod of z plus iota plus 1 over 2 and 2 iota, सॉरी, ये रह जाएगा, ठीक है। n तो हमारा गया, अब बिकॉज यहाँ पर n है ही नहीं है, तो हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपली हम इतना ही लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल टू, नाउ व्हाट इज़ मॉड ऑफ 2 आयोटा, हमें पता है कि मॉड ऑफ आयोटा तो 1 होता है, तो इसको ऐसे लिख लें z प्लस आयोटा प्लस 1 ओवर 2, ठीक है। अब अगर हम डीएलएम्बस टेस्ट से देखें तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी फॉर ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो बाय डीएलएम्बस टेस्ट the series converges if, अगर ये जो हमारी गिवन सीरीज हमने ये जो लिमिट लगाई है ये वाली चीज़, अगर mod of z प्लस आयोटा प्लस 1 ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसका मतलब if mod of z plus iota plus 1 is greater than 2, or we write thus the domain of convergence of the given series is mod of z plus iota plus 1 greater than 2, ये आपका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आ गया, ठीक है। इस पर हम सर्कल के बाहर हैं, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दैट शुड बी ग्रेटर दैन 2, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज़ 2 हेयर, बट जो हमारा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है वो इससे बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पॉइंट क्या है, अगर हम देखें, योर पॉइंट इज़ माइनस ऑफ -1 माइनस आयोटा, अगर हम z माइनस ये देखें, z माइनस ये आपका पॉइंट है, हम z माइनस z0 देखते हैं, तो ये आपका पॉइंट है -1 माइनस आयोटा, तो इसके मॉड ग्रेटर देन 2, तो वहाँ पर आपका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ये है, ठीक। इसके बाहर ये आपका 2 तक है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो आउटसाइड दिस द सीरीज कन्वर्जेस, ठीक।
Next, find the domain of convergence of this series. So here also हम फिर से टेस्ट का यूज़ करेंगे. हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फार्मूला नहीं लेके आना, इसको भी हम डीएलएम्बर्स टेस्ट से यूज़ करेंगे बिकॉज आप देखो आपकी सीरीज़ ही दूसरी फॉर्म की है. ठीक है, हम ए एन यहाँ से कंसिडर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें भी हम इस पूरे के पूरे को यू एन कंसिडर करेंगे और डीएलएम्बर्स टेस्ट की मदद से इसको देखेंगे कि डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ पर आ रहा है. सो लेट summation n going from 0 to infinity u n z is equal to summation n going from 0 to infinity iota z minus 1 over 2 plus iota the power n. So here take your u n z is equal to iota z minus 1 over 2 plus iota the power n, and un plus 1 z is equal to iota z minus 1 over 2 plus iota power n plus 1. So let's check the limit. Mod of un z over un plus 1 z, this is equal to limit. मैं इन टर्म्स देखो ये भी सेम टर्म है, ये भी सेम, बस पावर डिफरेंट है, तो मैं ऐसे ही कैंसिल करके लिख देती हूँ इसको. ठीक है, सो दिस विल बी आयोटा z माइनस 1 ओवर 2 प्लस आयोटा, ये मॉड आपका रह जाएगा. दिस इज इक्वल टू व्हाट इज़ द मॉड फॉर 2 प्लस आयोटा, वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट. सो दिस इज रूट ऑफ 4 प्लस 1 ओवर, इसको इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट माइनस 1 इज प्लस आयोटा स्क्वायर. ओके, mod this is equal to limit n tends to infinity, this is root of 5 over iota mod, this is z plus iota. आगे हमें पता है मॉड ऑफ आयोटा, अंदर दोनों के मॉड ले लेंगे, मॉड ऑफ आयोटा इज 1, so this is root of 5 over mod of z plus iota. ठीक है, next so by D'Alembert's test the series converges if mod, that is root of 5 over mod of z plus iota is greater than 1, if, अब इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका, तो आपका आ जाएगा mod of z plus iota लेस देन रूट 5. ठीक है, so the domain of convergence is this, hence domain of convergence of series is mod of z plus iota less than root of 5. Okay, next question, this is very important question. तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे. नाउ सी, अब ये आपका दिया हुआ है समीशन 1 3 5 2n माइनस 1 ओवर n फैक्टोरियल. ठीक है, 1 माइनस जेड बाई जेड दी पावर n. तो यहाँ पर हम फिर से अपना यू एन जेड ये वाला करते को, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में z प्रेजेंट है, फिर से हमने इसको ए एन नहीं लेना है अभी ऐसे. तो वी टेक यू एन जेड इज इक्वल टू 1 3 5 so on 2n minus 1 over n factorial
into 1 minus z over z the power n, and un plus 1 is equal to 1, 3, 5 so on 2n minus 1. साथ में हमें यहाँ पर n plus 1 पुट करना है, तो you will get 2n plus 1 over n की जगह n plus 1 factorial into 1 minus z over z the power n plus 1. यहाँ पर भी हमें डीएलएम्बस टेस्ट लगाना है. तो अगर हम इसकी लिमिट देखें, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. लिमिट यू एन जेड ओवर यू एन प्लस 1 जेड का मॉड इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू, सबकी सब टर्म्स कैंसिल होगी तो हम रह जाएंगे एन प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल 2n प्लस 1 इंटू 1 ओवर 1 माइनस जेड ओवर जेड का मॉड यहाँ पर आ जाएंगे. ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n अगर बाहर करें फैक्टोरियल की, दिस इज n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास रह जाएगा n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1. n प्लस 1 फैक्टोरियल को आपको क्या लिखना है, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, वो कैंसिल तो रह जाएगा n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1 इंटू mod of z over 1 minus z. So this is equal to, अगर आप n आउटसाइड लेंगे और लिमिट डालेंगे उसमें, तो आपका फिर ये 1 रह जाएगा. सो और डिनोमिनेटर में 2 रहेगा. देखो n बाहर करते तो 1 प्लस 1 बाय n ओवर 2 प्लस 1 बाय n. ठीक है, दिस इज z ओवर 1 माइनस z विच इज़ इक्वल टू, अब लिमिट डालेंगे तो रह जाएगा 1 बाय 2 mod of z by 1 minus z. So in the view of D'Alembert's test, thus by D'Alembert's test, the given series converges if this 1 by 2 into mod of z over mod of 1 minus z is greater than 1. If mod of z over 1 minus mod z is greater than 2. Okay, if I take the reciprocal, 1 minus mod z over mod of z is less than हाफ. जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है. ठीक है, सो आई एम टेकिंग 2 अपसाइड एंड दिस डिनोमिनेटर ऑन द राइट हैंड साइड. सो इफ 2 mod of 1 minus z is less than mod of z, squaring both the sides, you will get, I am inserting one more page. If you square both the side, you will get 4 mod of 1 minus z square is less than mod of z square. If 4, now 1 minus z mod square, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 minus z into 1 minus z bar. This is equal to this. आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा ये. And mod z square is z bar. Okay, if 4 into 1 minus z, if I multiply this, okay, इसमें अगर आप इसको ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके इन दोनों को, तो आपके पास रह जाएगा
4 minus 4 z plus z bar प्लस 4z बार, ठीक है, z बार। इसको अगर आप मल्टी ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इफ़ अब ये z बार हम या इस z बार को हम इधर ले आएंगे तो ये 3 रह जाएगा। सो दिस इज़ 4 माइनस 4 z प्लस z बार प्लस इसको यहाँ ले आओ, दिस इज़ 3z बार लेस देन 0। ओके, if now I'm taking मैंने ये 3 सबसे डिवाइड करना है सो दैट मेरे पास z बार रह जाएगा। z बार if I divide by 3 this can also be written as minus 4 by 3 z plus z bar plus 4 by 3 less than 0। ओके, अब यहाँ पर मुझे आपको एक स्टेप बताना है कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना होता है। देखो, हमें चाहिए कि हमारा z माइनस 4/3 इस टाइप की चीज़ हमें मिले, z बार माइनस 4/3 ये चीज़ हम चाहते हैं। दैट मीन्स अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, पहले हम इसको ओपन करके देखते हैं क्या मिलता है। z बार माइनस 4/3z माइनस 4/3z बार प्लस 4/3 लेस देन 0। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। दिस इज़ z बार माइनस 4/3z माइनस 4/3z बार प्लस 16/9। दैट मीन्स ये टर्म लाने के लिए हमें ये सारी टर्म्स चाहिए। z बार भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, 16/9 नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 16/9 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर इसको कलेक्ट कर कर हम डायरेक्ट ये लिख देंगे। ठीक है, तो हमें 16/9 चाहिए, तो हम इसमें 4/3z बार, इसमें हमें 16/9 चाहिए था, तो मैंने 16/9 ऐड कर लिया है और सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो उससे हमारे ऊपर वाले इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने कलेक्ट कर लिया और इसकी जगह लिख लिया मैंने z माइनस 4/3 और z बार माइनस 4/3, और ये रह जाएगा आपका, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके 4/9, दिस इज लेस देन 0। इफ़ अब इसको वापस हम देखो 1 माइनस जेड मॉड स्क्वायर कैसे था, 1 माइनस जेड बार, तो ऐसे ही इस चीज़ को भी हम वैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ, अच्छा पहले मैं ऐसे लिख देती हूँ, z माइनस 4/3 z माइनस 4/3 पूरे का कॉन्जुगेट एक ही बात है, माइनस 4/9 लेस देन 0। अब z बार क्या हो जाता है, मॉड ऑफ, यहाँ से देखो मॉड ऑफ z स्क्वायर क्या होता है, z बार, तो z बार इसको हम मॉड ऑफ z स्क्वायर लिख सकते हैं। z स्क्वायर मतलब z माइनस 4/3, इसका मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़, इसको वहाँ ले जाते हैं लेस देन 4/9। ये चीज़ आपको समझ आ गई, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। यहाँ पर अगर आप देखोगे दिस इज z माइनस 0, फिर आपको समझ आ जाएगा z बार माइनस 0। ठीक है, तब तो अब समझ आ गया आपको, दिस कैन बी रिटन एज z माइनस 4/3 मॉड का स्क्वायर। ठीक, तो अब स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर इधर ले आएंगे, ये रूट में आ जाएगा, दिस विल बी, ये इसका स्टेप मैं आगे ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पर, इफ़ मॉड ऑफ z माइनस 4/3 इज लेस देन, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लो, दैट इज़ 2/3, तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस अब आ गया ये। सो द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस of the series is mod of z minus
4/3 less than 2/3. Okay, all right. नेक्स्ट इज फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. अब हमको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है, तो उसमें हमें बाउंड्री पॉइंट्स लेने हैं और डोमेन वाले पॉइंट्स भी लेने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. लेट u and z is equal to z plus 2 over this is n minus 1 n plus 1 cube 4 the power n, and un plus 1 is equal to z plus 2 the power n over this will be n plus 2 cube and 4 the power n plus 1. Taking the limit u and z mod over un plus 1 z, this will be equal to, फिर से अगर आप टर्म्स कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगी दिस इज n plus 2 over n plus 1 होल क्यूब साथ में 4 ओवर mod of z plus 2 n कैंसिल हो जाएगा और जो इन्वर्स वाला है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया. ठीक है, सो नाउ दिस इज इक्वल टू देयर लिमिट भी लिखेंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर n बाहर ले लेते हैं, ये वाली लिमिट आ जाएगी आपके पास 1 plus 2 by n 1 plus 1 by n, दैट इज़ ये तो लिमिट आपकी 1 आ जाएगी. ठीक है, सो दिस इज़ 4 over mod of z plus 2. So by D'Alembert's test, the series converges if 4 over mod of z plus 2 is greater than 1. रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका. If mod of z plus 2 over 4 is less than 1, if mod of z plus 2 is less than 4. ओके, ये हमारा आ गया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, बट ये हमारा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस भी है. ठीक है, तो यहाँ तक हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं, बट हमें इसके बाउंड्री के पॉइंट्स भी चेक करने हैं. दैट मीन्स हमें चेक करना है, लेट्स चेक कि अगर मॉड ऑफ z प्लस 2 बाउंड्री पॉइंट्स मतलब इक्वल टू 4, लेस देन 4 मतलब अंदर वाले पॉइंट्स, सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स. तो यहाँ पर आपका पॉइंट क्या है, -2. ठीक है, तो इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे यहाँ पर 4 आ गया, तो इसके अंदर वाले पॉइंट्स हम देख रहे हैं. तो z माइनस जेड नॉट है आपका -2. तो अब हमें इसकी बाउंड्री पर भी चेक करना है. तो बाउंड्री पे चेक करने के लिए हमारा मॉड जो है इक्वल टू 4 होता है. ठीक है, देन देखते हैं यहाँ पर कन्वर्जेंस आती है कि नहीं. समीशन n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, हम अपना u and z चेक करते हैं, उसका मॉड दिस इज इक्वल टू समीशन n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity mod of z प्लस 2 द पावर n माइनस 1 जो हमारी गिवन सीरीज है, n प्लस 1 क्यूब 4 द पावर n. अब यहाँ पर z प्लस 2 की जगह हमें 4 रखना है, सो दिस इज 1 to infinity 4 की पावर n माइनस 1 over n plus 1 cube, this is 4 the power n. So this is equal to summation n going from 1 to infinity, ये कैंसिल हो जाएगा 4 the power n, तो एक 4 हमारा नीचे आ जाएगा. क्या मैं इसको लेस देन इक्वल टू लिख सकती हूँ, समेशन, वही मैंने डिनोमिनेटर स्किप कर दिया 1 over n क्यूब. और हमें पता है बाय पी टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट. तो अगर हमारा मॉड
कन्वर्जेंट शो हो गया है, इसका मतलब ये हमारा जो हमारी सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई है, क्योंकि हमारा मॉड ऑफ यू एन जेड कन्वर्जेंट शो हो गया है. सो देयरफॉर summation n going from 1 to infinity u and z is convergent absolutely. ठीक, तो इसका मतलब हमारे अंदर के पॉइंट्स पर भी सीरीज कन्वर्जेंट है और बाउंड्री पर भी कन्वर्जेंट है. तो जो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या हो जाएगा? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज मॉड ऑफ z प्लस 2. एक तो ये लेस देन 4 तो है ही है, साथ में ये इक्वालिटी भी. ये दिस इज़ योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. ऑलराइट, सो थैंक यू. और भी क्वेश्चंस हैं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो होप सो आपको डोमेन और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना आ गया होगा. मोस्टली हम ये वाले क्वेश्चंस डीएल नंबर्स टेस्ट से करते हैं. डीएल नंबर्स टेस्ट से हम उसकी कन्वर्जेंस शो करते हैं, और रीजन में आपको बाउंड्री पॉइंट्स भी चेक करने हैं. ऑलराइट, सो थैंक यू.